गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ बॉस पॉइंट्स ऑन इंडिया पोस्ट एनुअल रिपोर्ट, जो कि इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जामिनेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर topic they ask at least 6 to 7 questions in your examination, so we will distribute this in two parts so that we can have a complete understanding. Apart from this, एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि the information that is compiled in India Post Annual Report is actually about various schemes, like कितने post offices हैं, how many speed post centers are there, etc., which also covers other topics. So in total I think you can get benefited with 10 to 15 questions overall. तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक इन बॉस पॉइंट्स का सवाल है, you can get this from my app. I will share in the WhatsApp group as well. There is no problems whatsoever, and we will also conduct a test on this very soon, that is within 1 or 2 days, so that we will not require to pick up annual report topic once again. आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसके साथ साथ आप जो लास्ट ईयर के 88 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट, उसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लें, बिकॉज द नोटिफिकेशन इज हाउएवर द नोटिफिकेशन इज इन दिस ईयर, बट आई थिंक देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द लास्ट एनुअल रिपोर्ट्स एज वेल. So you can understand the shift between the last annual report and this annual report, and this will make you more stronger as far as various topics are concerned. ये ओवरव्यू है इंडियन पोस्ट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, द लास्ट माइल रीच. वाकई में लास्ट माइल रीच है हमारे डिपार्टमेंट की. अच्छा, जिनको ऐप डाउनलोड करनी हो, प्ले स्टोर पे एड्यू थाला डालेंगे, यू विल गेट माई ऐप. Urban post offices, rural post offices, departmental post offices, the total is now at 1,56,434. In the previous year it was something else. Branch post offices इतने हैं, departmental employees इतने हैं, ग्रामीण डाक सेवक इतने सारे, so many numbers of ग्रामीण डाक सेवक are there. And this is the important thing, important point regarding examination. On an average, a post office serves 8,713 people in the country. तो ये फिगर अब नया आ गया है. 6,336 people in the rural areas and 30,519 people in the urban area. बहुत important figures हैं. You should remember these figures always, that a post office is on an average serving 8,713 people in the country. This means on one post office there are 8,713 people who are customers of that particular post office. Average area served by a post office is 21.36 square kilometer. Good enough question to come in any examination. ये पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था that in 1852 the first ever adhesive postage stamp in Asia was issued in Sindh province. ये पहली स्टैम्प की बात कर रहे हैं, पोस्टेज स्टैम्प की बात में. 1852 में इंडिया की, एशिया की. वर्ल्ड की पहली आप सबको पता है, इट इज पेनी ब्लैक, विच वी ऑल्सो रीड इन फिलैटेले पार्ट. तो फिलैटली में हम पढ़ते हैं, बट यहाँ से देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनुअल रिपोर्ट कवर्स मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सिलेबस. हियर इट इज कवरिंग समथिंग फ्रॉम फिलैटली. सो द फर्स्ट ever adhesive postage stamp in Asia was Sindh province. The name of that stamp was Sindh Doc. These stamps were in circulation up to June 1866. Another important point, on 18 February 1911 the world first airmail flight. देखिए कितना important है कि दुनिया की, विश्व की, वर्ल्ड की फर्स्ट एयरमेल फ्लाइट जो थी, दैट वाज फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी, इंडिया में थी वो. इट ट्रांसफर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर लंबी थी. एंड लेट मी टेल यू, इन द ईयर 2011 एक स्पेशल कमोमेरेटिव स्टैम्प जो है इस ओकेशन के 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर इंडिया पोस्ट ने लॉन्च भी किया था. दिस इज ओरिजिन ऑफ इंडिया पोस्ट. दिस ट्रैक्स बैक्स टू 1727 व्हेन द फर्स्ट पीओ वाज सेट अप इन देन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कोलकाता. सबसे पहला कोलकाता इन 1774, चेन्नई इन 1986, मुंबई इन 1793 एंड इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1837, फॉलोड बाय मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 which laid foundation to modern post offices in India. देखिए, आप कह सकते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई मॉडर्न पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया जो है उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ने रखी थी. इंडिया पोस्ट का ओरिजिन 1727, और हम सब जानते हैं 1854 से वी एक्चुअली काउंट the birth of Indian Post, that is 150 years were completed in 2004. RMS in the same year and sea mail service started from India to Great Britain and China. So ये थोड़े historical questions हैं, कुछ इसमें से आपसे they might ask you. विजन वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द विजन ऑफ इंडिया पोस्ट, और आपको 4 ऑप्शन दे सकता है. उसमें ये है, इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी द कस्टमर्स फर्स्ट
choice. Another question we can understand in the last examination, the questions were very typical. So they may give you these 5 options and they will ask you कि इनमें से कौन सा मिशन का पार्ट है, which of these is part of the mission. So they give you random statements and one of them will be correct. तो आपको ये सारे विजन और मिशन स्टेटमेंट स्पेशली पता होने चाहिए. One more thing they can do, they will ask you a question, which of these is vision statement of India Post. उसमें आपको एक ऑप्शन ये दे देंगे, one option will be this one, one option will be this one and one option will be this one. So they will mix and merge mission and vision and they will ask you which is the vision statement. So आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मिशन क्या है और विजन क्या है, ये हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए. ये आप ध्यान रखिए that an amendment in section 7 of the Indian Post Office Act 1898 was approved by Parliament through Financial Bill 2017, whereby the powers to modify rates and tariffs of basic postal services contained in the first schedule जो पहले पार्लियामेंट के पास था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दे दिया है. यानी जो रेट्स एंड टैरिफ्स है ना पोस्टल सर्विसेज के, वो अर्लियर जो था गवर्नमेंट पार्लियामेंट उसको रिवाइज करती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास इसके लिए पावर्स हैं. सो हु कैन, देयर माइट बी अ क्वेश्चन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू हु इज कॉम्पिटेंट टू चेंज द rates and tariffs of basic postal services contained in the first schedule. The answer is Ministry of Communications. The core activity of the department, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भारतीय डाक की core activity क्या है? What is the core purpose of India Post? It is processing, transmission and delivery of mail and money remittance across the country. So please understand, they might ask you core activity क्या है. They might ask you which of these is part of core activity of the department. भारतीय डाक की कोर एक्टिविटी का इनमें से कौन कौन सा हिस्सा है. ऑप्शन देंगे प्रोसेसिंग ऑफ मेल, ट्रांसमिशन ऑफ मेल, डिलीवरी ऑफ मेल, मनी रेमिटेंस. सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर एक्टिविटी डिपार्टमेंट की क्या है. ऑप्शन देता है फाइनेंशियल इंक्लूजन. इट इज नॉट कोर एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. प्लीज एंश्योर दिस. As per Article 246(1) of the Constitution of India, the Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matters enumerated in list first in the 7th schedule. Communication is listed at entry number 31. तो भाई 246(1) के अनुसार जो हमारा है यूनियन लिस्ट में आता है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा है. श्री अश्विनी वैष्णव जो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैं. श्री देवू सिन्हा चौहान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है. पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है जिसके अंदर सेक्रेटरी, चेयरपर्सन होते हैं, डीजी, एडीजी, कोऑर्डिनेशन एंड 6 मेंबर्स जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट देयर आर 6 मेंबर्स. पर्सनल मैनेजमेंट, पोस्टल ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, इंडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस फंड्स, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिलेक्ट्री एंड एस्टेट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. तो ये सारे के सारे जो हेड्स हैं ना मेंबर्स के, वो आपको याद कर लेने हैं. फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ है? श्रीनगर की डल लेक में है. करंटली सिचुएशन क्या है? 23 सर्कल, 54 रीजन, 448 डिविजन्स. ये नंबर्स मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, ऐसे आप एक बार देख लीजिएगा, सफिशिएंट आप लोग आराम से कर लेंगे. आर्मी पोस्टल सर्विसेज हेडेड बाय डीजी एपीएस, मेजर जनरल रैंक के व्यक्ति होते हैं. रकनपा रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी गाजियाबाद, जहां पे हमारे ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, आप सब अच्छे से जानते हैं. हिक्किम पोस्ट ऑफिस इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड विच इज अबव 14,400 फीट above the sea level itself. Delivery norms of speed post are fixed considering the fastest available transport mode between the booking points and delivery destination. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. They might ask you कि स्पीड पोस्ट के डिलीवरी नॉर्म्स जो हैं वो किस बेसिस पे फिक्स किए जाते हैं. तो आंसर होगा फास्टेस्ट अवेलेबल ट्रांसपोर्ट मोड बिटवीन दोज बुकिंग पॉइंट एंड डिलीवरी डेस्टिनेशन. मान लीजिए अगर आप आगरा से चेन्नई कोई स्पीड पोस्ट बुक करते हैं तो आगरा टू चेन्नई या मोर देन 1000 किलोमीटर या वॉट एवर इट इज, द डिलीवरी नॉर्म्स आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ फास्टेस्ट अवेलेबल ट्रांसपोर्ट मोड बिटवीन आगरा एंड चेन्नई. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई स्पीड पोस्ट की डिलीवरी नॉर्म्स आखिर कैसे सेटअप होती हैं, यहाँ से सेटअप होती हैं. क्या आपको ये पता था पहले से? आई वॉन्ट यू गाइज टू रिप्लाई. क्या आपको ये वाला पॉइंट पहले से पता था? अगर नहीं पता था और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज व्हाट आई वांट ऑलवेज इज़ यू टू लाइक द वीडियो. अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी थोड़ा सा पर्पस जो होता है वो गड़बड़ा जाता है.
सो आई यहाँ बगल में मेरी मम्मी जी बैठी हैं, मैं लाइव में आपको बता देता हूँ, जिन्होंने अभी अभी फ़ोन के अंदर एक गाना चला दिया था और वो गलती से उसको बंद करने की कोशिश कर रही थी और वो बंद नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि कोई भी डिस्टर्बेंसेज ना करें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्पीड पोस्ट का वेट क्या होता है, 35 kgs होता है, मैक्सिमम वेट है, इससे ज़्यादा की स्पीड पोस्ट जो है आप नहीं करा सकते हैं। स्पीड पोस्ट का लॉन्च ईयर 1986, बारकोड हम जानते हैं सभी 13 डिजिट के होते हैं, इंश्योरेंस अप टू 1 लाख इज एडमिसिबल। सो स्पीड पोस्ट का ईयर ना बहुत एग्जामिनेशन में पूछता है, आप सबको वेल वर्स्ड हैं, आपको पता है। मोर देन 70,000 मोबाइल फोन्स आर नाउ सप्लाइड टू पोस्टमैन, किस लिए, पीएमए के लिए। पोस्टमैन MA फुल फॉर्म आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PA? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। मोर देन 70,000 मोबाइल फोन्स आर नाउ सप्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। PMA ऐप इज बाय CEPT मैसूर। CEPT की फुल फॉर्म you will tell me in the comment box right now. So please tell me what is the full form of PMA and what is the full form for CEPT. I will not tell you the answer. मैं जानता हूँ आप सबको अच्छे से पता है, but just to make it refresh in your mind, I am just asking this question. Please answer me. PMA and CEPT. Comment box में या live chat में please बताइएगा। नान्यथा क्या है, लेटर बॉक्स क्लियरिंग ऐप है हमारा जो मॉड्यूल है। तो नान्यथा जो है 3726 सिटीज एंड 56,521 लेटर बॉक्सेस पे पहुंच चुका है ना। सम पीपल विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर क्या ये फिगर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं? तो दोस्तों जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। दे आस्क्ड दैट हाउ मेनी LED पोस्ट ऑफिसेज आर इंस्टॉल्ड, हाउ मेनी RPLI पॉलिसीज आर देयर। सो दे मे आइट आस्क यू दिस। 70,000 मोबाइल फोन्स, they might ask you 3,726 cities, 56,521 letterboxes. All of them are very, very important. Nanyatha also enables the member of public to know the status of clearance of letterbox. जो नान्यथा ऐप है बेसिकली, उसके अंदर लेटर बॉक्स को जब क्लियर करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। सो नान्यथा ऐप से जो कस्टमर है वो appost.in/नान्यथा, ये इंपॉर्टेंट लिंक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पे जाकर वो चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने जिस लेटर बॉक्स में डाक पोस्ट करी थी वो आखिर कितने बजे क्लियर हुआ। In order to expedite what? Mail processing, department have established AMPCs in Delhi and Kolkata. ये जो सेंटर्स हैं इनमें LSM लगी हुई है, लेटर सॉर्टिंग मशीन, एंड अ मिक्स्ड मेल सॉर्टर, ईच विद अ सॉर्टिंग कैपेसिटी ऑफ 35,000 एंड 18,000 आइटम्स पर आवर रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव फुल फेथ इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने जा रहा है। 23 नंबर पॉइंट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, दोबारा से पढ़ लेते हैं। द 3 न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, दैट इज 3 नए प्रोडक्ट्स हैं इंडिया पोस्ट के। एक है ऑर्डर आधार रीप्रिंट लेटर्स, इनको नाम दिया है OARL। दे विल गिव यू दिस फुल फॉर्म, दिस शॉर्ट फॉर्म, एंड दे विल आस्क यू फॉर द फुल फॉर्म। Address validation letters, AVL, they will give you this short form and ask you this full form, or they can ask you PVC, Aadhaar, what is the full form and all those. So this is very important. They might ask you the full forms. They might ask you कि इंडिया पोस्ट ने UIDAI के साथ मिलकर how many types of new products they have launched. So they have launched 3 types of this new products. So this is some figures over here. These are not important, but these OARL, AVL and PVC Aadhaar are very, very, very important. Department has so far delivered 166.73 crore Aadhaar letters through first class delivery mail. यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कौन से मेल के थ्रू आधार कार्ड को डिलीवर करता है? फर्स्ट क्लास डिलीवरी मेल के थ्रू। आप जानते हैं फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, फर्स्ट क्लास डिलीवरी मेल के थ्रू करता है। MMS, मेल मोटर सर्विस, हर सिटी में नहीं होती है। वो जो डाक की गाड़ियां होती हैं ना, those big large cars, which we call mail vans, those large big mail vans or small big mail vans, what I'm saying, those large mail vans and those small mail vans, and various types of vans are there with India Post also. Alag regions, they are having different kinds of mail vans with them. So there are 1944 such mail vans, big and small. Maintains 41,469 mail motors and 511 inspection vehicles. What do you mean by inspection vehicles? ये जो हमारे SSP, हमारे DPS, PMG साहब, CPMG साहब, इन लोगों के पास जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं inspection vehicles. Out of which 200 CNG and 1263 GPS enabled. तो ये एक है कि आपके क्वेश्चन कर सकते हैं। MMS की फुल फॉर्म मेल मोटर सर्विस होती है। ये क्या मेंटेन करता है? मेल मोटर्स को भी करता है, इंस्पेक्शन व्हीकल्स को भी करता है, एंड सच व्हीकल्स आर CNG एंड GPS equipped.
पार्सल डायरेक्टरेट को एस्टेब्लिश किया गया था इन 2018 एंड इट फोकसेस ऑन विच सेक्टर, सीईपी सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सीईपी, कोरियर, एक्सप्रेस एंड पार्सल सेक्टर। तो ये हमारा पार्सल डायरेक्टर एस्टेब्लिश हो चुका है, आप जानते हैं। एंड सीईपी, देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हिच सेक्टर द पार्सल डायरेक्टरेट इज फोकसिंग ऑन। इट इज फोकसिंग ऑन this CEP sector. A redesigned network consisting of 190 parcel hub, including 57 level 1, 133 level 2 hubs for handling parcel have been operationalized. Integrated parcel IPPC have been operationalized in 12 cities. तो ये चार्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज इन द लास्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो ये क्वेश्चन हमसे किया गया था कि कितने L1 L2 होते हैं। तो ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से ये फिगर्स याद कर लेनी है। AMPC, conveyor belts and dynamic weight automated sorting system, sorry, not AMPC, automated sorting system with conveyor belts and dynamic weightment system have been made functional at 8 locations. These semi-automated centers have parcel processing capacity up to 2500 parcels per hour, especially to handle e-commerce parcel. तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, 8 लोकेशंस पे ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स विद कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होती हैं? हम उस पार्सल को उस बेल्ट के ऊपर रख देते हैं और वो अपने आप जाता है ऐसे मशीन की तरफ। उसमें वेटमेंट सिस्टम भी है, वो जज भी कर रहा है कि ये जिस बुकिंग पे आया है, जिस वेट की बुकिंग के साथ आया, उतना इसमें अवेलेबल वेट है या ज़्यादा वेट है, कहीं इनकरेक्ट वेट की बुकिंग तो नहीं हो गई है। 200 locations have been identified for setting nodal delivery centers, NDC. NDCs क्या होते हैं? Basically NDCs are special offices for delivery of parcel. So होता क्या है कि जितना भी पार्सल मेल आता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया जाता है, इन पर्टिकुलर ऑफिस विच इज नॉन एज नोडल डिलीवरी सेंटर, एंड दैट नोडल डिलीवरी सेंटर्स डिलीवर्स ऑल द पार्सल। तो उनको बाकी लेटर मेल और अदर चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो केवल पार्सल मेल से डिलीवरी करेंगे। और 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे अमेजन, डिलीवरी, इन सब के आते हैं, वैसे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के थ्रू हमारे लोग जो हैं डिलीवरी कर रहे हैं। 145 सिटीज़ के अंदर ये अब ऑपरेशनल हो चुका है। द डिस्ट्रीब्यूशन सिटीज टाउन फॉर सेटिंग अप NDC इज एज फॉलोज। जो प्लान है वो ये है कि भाई टाइप 1 सिटीज़ में 52, टाइप 2 में 82 और टायर 3 में 66 जो हैं हमें NDCs सेटअप करने हैं। ये थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, RTN, ये वर्ड आपने सुना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा RTN नेटवर्क। RTN के आगे नेटवर्क की जरूरत नहीं थी, RTN मींस रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सो व्हेन कोविड स्ट्राइक, जब कोविड आया तो हमारा इंडिया पोस्ट का जो रेल से ट्रांसमिशन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया था। रीजन बीइंग दैट मोस्ट ऑफ द मेल वॉज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस ट्रेन्स, हमारे पास सेक्शन से ट्रेन में उसमें जाता था। तो इंडिया पोस्ट रोज अप टू द सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन, एंड दे एस्टेब्लिश अ रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हमने अपनी मेल मोटर्स जो हमने ऊपर पढ़ी थी, मेल मोटर्स के थ्रू पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से। 68 नेशनल रूट्स हमने बनाए जिसने 400 सिटीज को कनेक्ट किया, जो 24 अप्रैल से चल रही शुरू हुआ। 3700 tons of essential items and 7.5 lakhs bags were transported during the lockdown period itself. और अब 48 रूट्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं आउट ऑफ 68 जो इन्होंने प्लान किया था। इसके लिए स्पेशल पॉइंट जो बनाए गए उसको नाम दिया गया ट्रांसशिपमेंट सेंटर। प्लीज पॉइंट नंबर 32 इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ट्रांसशिपमेंट सेंटर। एज अ पार्ट ऑफ RTN, 18 ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स एज पार्सल बैग एक्सचेंज पॉइंट्स आर प्लान आउटसाइड द मेजर सिटीज। तो मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा TMO होते हैं, ट्रांजिट मेल ऑफिस, उस तरीके की 18 ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स हम लोगों ने बनाए। प्रेजेंटली 5 ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स आर फंक्शनल, गुवाहाटी, सागर इज इन MP, चेन्नई, सिलीगुड़ी एंड बेंगलुरु। For government department, PSUs, corporate houses having large volume of mail, the Department of Post introduced Business Post in 1996. यहाँ 1996 बहुत इंपॉर्टेंट है। Apart from that, what is Business Post? Business Post में हम various pre-mailing activities की services को बहुत ही nominal rate पे देते हैं, जैसे insertion, जैसे enveloping, जैसे addressing, जैसे pickup of the mail, जैसे pasting of that envelope, और all those pre-mailing activities, fold here, it's given over here, folding, insertion, franking, addressing, pasting, etc. तो जिनके पास हैवी मेल होता है उनसे हम कहते हैं भाई आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमें ये काम दीजिए, हम लोग कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे
मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई वेरी वेल नो दैट यू विल लाइक दिस वीडियो 100%. आपको ये बॉस पॉइंट्स चाहिए हो तो इट विल बी अवेलेबल ऑन माई एप्लीकेशन. ऑल्सो आई विल पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. Department of Post on behalf of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises undertook National SC/ST Scheme Awareness Campaign through 9,178 post offices in the country through Media Post. तो भाई मीडिया पोस्ट क्या है? मीडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की वो स्कीम है जिसके अंदर वेरियस कंपनीज, वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे पोस्टल प्रेमाइसेस के अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड मीडिया पोस्ट. नॉट ओनली प्रेमाइसेस बट ऑन द वॉल्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज, ऑन द मेल मोटर्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज, ऑन पोस्ट कार्ड्स, ऑन पासबुक्स. तो इसको कहते हैं मीडिया पोस्ट. जुलाई 2016 से डिपार्टमेंट जो है वो गंगा जल का काम कर रहा है. 200 ml और 500 ml की बॉटल्स अवेलेबल हैं. प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि पहले साइजेस अलग थे, अब राइट नाउ साइजेस अलग हैं. Now the sale is done through 4,116 post offices across the country and also available on online portal that is epost.gov.in and ecom.indiapost.gov.in. ये स्कीम 2016 में स्टार्ट हुई थी. EMO 2008 में हुआ था. जीवन प्रमाण हम जानते हैं, DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर्स को जो हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. PLI के अंदर 6 टाइप्स ऑफ पॉलिसी होती हैं, हम अच्छे से जानते हैं. PLI 20,000 to 50 lakh, RPLI 10,000 to 10 lakh. Am I correct over here or is it 20 lakhs? No, it is 10 lakh only ना. प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, ये 10 लाख है 20 लाख है. करंट बोनस रेट्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिखा है. पोस्ट इन्फो ऐप के अंदर आप लोग रेफर कर लीजिएगा. इंटरेस्ट रेट भी वहाँ सबसे ज़्यादा अपडेटेड मिलते हैं. तो पोस्ट इन्फो जो ऐप है उसके अंदर आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. इंटरनेशनल EMS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMS? प्लीज़ कमेंट. EMS की फुल फॉर्म आखिर क्या होती है? आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMS. इंटरनेशनल EMS से मतलब है स्पीड पोस्ट. तो 106 कंट्रीज, वही पहले वाला हिसाब है, 106 कंट्रीज के लिए अवेलेबल है. और 106 कंट्रीज में 100 कंट्रीज के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है और 6 कंट्रीज के लिए केवल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. इसीलिए मैंने 100+6 लिखा है. सो देयर आर 6 कंट्रीज टू होम ओनली डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट कैन बी सेंट. इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट 15 कंट्रीज. आप जानते हैं एशिया पैसिफिक रीजन का है ये. मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो एनुअल रिपोर्ट है वो हमें बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी बताती है क्योंकि हमारे कोर्स में है कि हम वेरियस सर्विसेज ऑफ इंडिया पोस्ट को भी जानें. तो वेरियस सर्विसेज में एक सर्विस है इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट. ब्लाइंड लिटरेचर को सिसोग्राम्स भी कहते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला इस बार की एनुअल रिपोर्ट में. सो द ब्लाइंड लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज सेसोग्राम्स. प्लीज अप टू 7 kg होता है, फ्री होता है, हम जानते हैं, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेसोग्राम. दैट इज समथिंग न्यू आई हैव जस्ट सीन फॉर नाउ. ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन साइन द लेटर ऑफ इंटेंट. किसके साथ किया है लेटर ऑफ इंटेंट? मिनिस्टर ने साइन किया है HE मिस्टर नेगुएन मैन हंग, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम. तो ये अनइम्पॉर्टेंट है बट ठीक है, पढ़ लिया एक बार तो याद रहेगा. वियतनाम के साथ हमारे देश ने लेटर ऑफ इंटेंट, किस चीज़ का इंटेंट है? ये हम कोऑपरेशन करेंगे पोस्ट की फील्ड के अंदर. फिलैटली आप जानते हैं क्या है, और ये हमारे देश की जो वेरियस इवेंट्स होती हैं, कल्चर होता है, हेरिटेज होता है, उसको प्रमोट करने का एक साधन है. पोस्टल स्टैम्प्स आर पिक्टोरियल एम्बेसडर्स, दे आर स्टेटमेंट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन. इसको चलाने के लिए PAC होती है विच इज कॉल्ड फिलेटलिक एडवाइजरी कमेटी विच इज दी हेडेड बाय मिनिस्टर एंड को चेयर्स बाय स्टेट मिनिस्टर, विच इज हेडेड बाय मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर. ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी PAC इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड को चेयर्ड बाय द स्टेट मिनिस्टर. तो ये है हमारी फिलेटली एडवाइजरी कमेटी. पिछले साल टोटल 10 स्टैम्प्स और 10 इश्यूज निकाले गए थे. 19 फिलेटलिक एग्जीबिशंस हुई थी जिसमें इंडिया एट 75 जो है उसकी बेसिकली जो थीम है वो मनाई जा रही है. और वर्चुअल मोड में भी इस बार बहुत सारी एग्जीबिशंस कंडक्ट हुई थी. प्लीज़ पिछले वाले एनुअल रिपोर्ट में ज़रूर जाइएगा जहां मैंने आपसे सवाल किया था कि पहला सर्किल कौन सा है जिसने वर्चुअल मोड ऑनलाइन फिलेटली एग्जीबिशन कराई थी. क्या आप लोगों को याद है? प्लीज जरा कमेंट में लिखें. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट सर्किल टू कंडक्ट अ वर्चुअल मोड फिलेटली एग्जीबिशन? डू यू रिमेंबर एनीवेज? व्हाट इज योर कमेंट? I will take the test. I will definitely ask you this question.
एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव 2 सेट ऑफ स्पेशल कवर चल रहे हैं। एक चल रहा है अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम एंड जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जो हम सिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉन्च कर रहे हैं। तो ये इंडिया पोस्ट का एक बड़ा स्टेप है कि भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अनसंग हीरोज के ऊपर स्टैम्प निकाल के और जीआई प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टैम्प्स को निकाल के। माई स्टैम्प ऑन डिमांड ऑन डायमंड जुबली सेलिब्रेशन गोवा लिबरेशन। तो भाई गोवा लिबरेशन की डायमंड जुबली हो गई है। डायमंड जुबली इज 60 ईयर्स, आई थिंक 60 ईयर्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के ऊपर हम लोग माई स्टैम्प लॉन्च किया है गोवा लिबरेशन। किसने लॉन्च किया है वो नीचे हम जब पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा। पीओएसबी फैसिलिटीज अवेलेबल सिंस 1882। कितना पुराना, लोग कहते हैं स्टेट बैंक बहुत पुराना बैंक है, जरा देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक इज अवेलेबल सिंस 1882 टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जो दूर से दूरस्थ इलाके हैं देश के, वहां पर भी आपको मौजूद मिलेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो पीओएसबी स्कीम्स को मिनिस्ट्री के बिहाफ पे चलाती है। हालांकि अब हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी लॉन्च हो गया है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा आईपीपीबी के बारे में, आईपीपीबी की वेबसाइट पे पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है इस बार आने के चांसेस हैं, बिकॉज इंडिया पोस्ट हैज डन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ कोलैबोरेशंस लाइक इंश्योरेंस के लिए बजाज हो गया एंड मैनी अदर यू नो फॉर लोन विद एचडीएफसी ऑल्सो। सो हम सबको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। कोर बैंकिंग थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइसेज, जो हमारे आरआईसीटी डिवाइसेज है उनके थ्रू रूरल पोस्ट ऑफिस भी जो है अब 25,018 पोस्ट ऑफिस हैं जो कि सीबीएस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और रूरल हैंड हेल्ड पोस्ट ऑफिस हैंड हेल्ड डिवाइस के बेसिस पे उस सीबीएस की कारवा का हिस्सा बन चुके हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है कई सवालों में, कई एग्जाम्स में, दैट द फर्स्ट एटीएम सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट वाज इनॉग्रेटेड एट थ्यागार्या नगर हेड पोस्ट ऑफिस इन चेन्नई। और 1000 एटीएम्स जो हैं अब इंडिया पोस्ट के हो चुके हैं और इंटर ऑपरेबल हो चुके हैं 31/12/2016 से। दे आर इंटर ऑपरेबल इन ऑल सेंसेस। सो 51 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। सेकेंड वीडियो में मैं बाकी के पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए हम लोग टोटल जो है 101 पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं दोनों वीडियोस को ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। आप एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वीडियो जो है मैं थोड़ी देर में लाइव कर दूंगा, उसको अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा। इन दी मीनवाइल मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट किए देता हूँ। सो 51 पॉइंट्स वी हैव डन विद एंड दिस वीडियो इज ऑलरेडी ऑफ सफिशिएंट लेंथ, सो आई विल कट द वीडियो ओवर हियर एंड फॉर India Post Annual Report Part 2 I'll be posting very soon. Please stay tuned until we meet next time. तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया है तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, टेक केयर गाइस।